हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे। आज की क्लास बेस्ड होगी जीके जीएस टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। आप सभी को पता है जो ये क्लास है वो हम टारगेट कर रहे हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम को। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी बिम्बिसार। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य emperor around 322 BC. Ashoka was a famous emperor but not the first emperor of the मौर्य डायनेस्टी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, which planet is known as the morning star? Option A Venus, option C B Mars, option C Jupiter, option D Mercury. So वो कौन सा प्लैनेट है जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए वीनस। Venus is often visible just before the sunrise, hence it is called the morning star. Venus जो है वो सनराइज होने से पहले भी दिखता है, सो दिस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार. Mercury is also visible in dawn or dusk, but Venus is more prominent. That's why हम कह सकते हैं कि Venus is the morning star. हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल अर्थक्वेक। वो अर्थ की वो कौन सी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मैंटल, ऑप्शन सी आउटर कोर, ऑप्शन डी इनर कोर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए क्रस्ट. एक्सप्लेनेशन: earthquake occurs due to tectonic plate movement in the crust. earthquake जब कभी भी आता है तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं क्रस्ट के अंदर उनके मूवमेंट की वजह से earthquake आता है. Other than that, the mantle and core are the involved in internal heat convection but not earthquake. हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, डी सी मेसोस्फेयर, डी thermosphere. So the right answer is option B, stratosphere. The ozone layer is found in the stratosphere, which absorb and scatter the ultraviolet solar radiations. The troposphere contain the weather system and the other layer are higher. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। What is the largest ocean on earth? हमारी पृथ्वी पे सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? सो ऑप्शन ए इज Atlantic Ocean, option B is Pacific Ocean, option C is Indian Ocean,
Option D is the Arctic Ocean. So right answer is Pacific Ocean. The Pacific Ocean is largest and the deepest ocean on the earth. The Atlantic Ocean is the second largest ocean, followed by the Indian Ocean. So Indian Ocean के बाद Atlantic Ocean. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. Which is the largest seismograph region of India? Seismograph region कौन सा है largest? A. Northern Mountains. B. Indo-Gangetic region. C. Peninsular Plateau. D. Coastal plains. So option C is Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is the largest region covering most of the southern India. The Indo-Gangetic plains are extensive and but small in comparison. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. Which river is the longest in India? वो कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है भारत में? ऑप्शन ए यमुना. ऑप्शन ए यमुना. ऑप्शन बी गंगोत्री. ऑप्शन सी गंगा. ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र. ऑप्शन सी गंगा. The Ganga River is about 2,525 kilometers long, making it the longest river in India. जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है जो कुल 2,525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है. यमुना एंड गोदावरी आर आल्सो नोन एज द मेजर रिवर्स बट वो छोटी हैं गंगा के मुकाबले. हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. Which type of climate is predominant in the Indian subcontinents? Option A. Tropical monsoon climate. Option B. Temperature climate. Option C. Desert climate. Option D. Polar climate. Option A. Tropical monsoon climate. India experiences a tropical monsoon climate with distinct wet and dry seasons. Other options like desert and the polar climate are not common in India. तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. This type of soil found in the Deccan Plateau. Deccan Plateau में किस तरह का सॉइल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑलिवल सॉइल. बी ब्लैक सॉइल. सी रेड सॉइल. डी लेटराइट सॉइल. So answer is right answer is black soil. Black soil found in the Deccan Plateau, rich in clay and ideal for the cotton cultivation. Red soil and laterite are found in different regions of India. अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. Which forest is found in the northeastern part of the India? Option A tropical rainforest. Tropical rainforest. Option B temperature forest. C coniferous forest. D mangrove forest. Option A tropical rainforest. Tropical rainforests are abundant in northeastern India due to heavy rainfalls.
रेनफॉल्स। तो सही जवाब है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो बहुत हैवी रेन की वजह से बनता है, या ज़रूरत से ज़्यादा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, विच क्रॉप इज ग्रोन इन द रबी सीजन। हम रबी सीजन में किस तरह का फसल उगाते हैं। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी वीट, ऑप्शन डी कॉटन। सो द राइट आंसर इज वीट। हम रबी सीजन में वीट उगाते हैं। सो वीट इज द रबी क्रॉप ड्यूरिंग द विंटर सीजन। राइस एंड मेज और खरीफ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून, जो कि मानसून के वक्त उगाई जाती है राइस और मेज। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया। इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सी मुंबई सी आईएसबीटी, मुंबई सीएसडी, और डी चेन्नई सेंट्रल। सो ऑप्शन बी इज द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। हावड़ा सीएसडी, हावड़ा एंड सीएसडी आर द मेजर स्टेशन बट नॉट द बिजीएस्ट स्टेशन। सो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच मिनरल इज इनिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। स्टील प्रोडक्शन के हमें कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑप्शन ए कोल, कोयला, ऑप्शन बी आयरन और सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी मैग्नीज। सो सही आंसर है ऑप्शन बी आयरन ओर। आयरन ओर इज अ primary mineral used to produce steel. Manganese is used as the alloy in steel and bauxite is used for the aluminum. So मैग्नीज का इस्तेमाल हम एलॉय के लिए करते हैं स्टील में, और बॉक्साइट का इस्तेमाल हम एल्यूमिनियम में करते हैं। आयरन ओर इज द प्राइमरी मिनरल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्टील। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया की भारत का वो कौन सा राज्य है जो एरिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है। सो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान is the largest state in India by area, covering 2042 3,42,239 square kilometers. Uttar Pradesh is most populous state but not the largest. उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पर वो बड़ा नहीं है एरिया के मामले में। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट को हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो सही जवाब है अफ्रीका। सो अफ्रीका वॉज हिस्टोरिकली कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर एंड मिस्टीरियस नेचर। तो हम ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर एरिया की वजह से डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे हिस्ट्री में। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन व्हेन द डिमांड एक्सिस्ट।
सप्लाई। जब क्या होगा, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए प्राइस इंक्रीजेस, कीमतें बढ़ जाएंगी। ऑप्शन बी प्राइस स्टे द सेम, कीमत सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी कीमत। ऑप्शन सी प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस कीमतें बढ़ जाएंगी। ऑप्शन डी सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई बढ़ जाएगी। सही जवाब है प्राइस इंक्रीजेस व्हेन डिमांड एक्सिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। इसमें से कौन सा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर है? ऑप्शन ए पर्सनल इनकम, ऑप्शन बी नेशनल इनकम, ऑप्शन सी सेविंग रेट, ऑप्शन डी एम्प्लॉय रेट। सो द नेशनल इनकम इज अ macroeconomics indicator. National income is a macroeconomic indicator, is used to measuring the total income output, economic personal income, saving from also as micro variables. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने का सबसे आम कारण क्या हो सकता है, क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज डिमांड, डिमांड का बढ़ जाना, इंक्रीज सप्लाई, सप्लाई का बढ़ जाना। ऑप्शन डी इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ जाना। ऑप्शन डी इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड का बढ़ जाना। ऑप्शन ए इज इंक्रीज डिमांड, डिमांड का बढ़ जाना। सो इन्फ्लेशन ऑफन अकर्स व्हेन द डिमांड एक्सिस्ट, सप्लाई पुशिंग द हायर प्राइसेस। Increased costs also contribute but not as the directly as demand. इंक्रीज कॉस्ट भी इन्फ्लेशन को मदद करती है बढ़ने में, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वे में। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विच टैक्स लेविड बाय बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कौन सा टैक्स है जो दोनों ही शेयर करते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? सो ऑप्शन ए इज इनकम टैक्स, ऑप्शन बी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज कॉल्ड जीएसटी। ऑप्शन सी सेल्स टैक्स, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी टैक्स। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये इसका सही जवाब है। जीएसटी इज अ ड्यूल टैक्स सिस्टम लेविड बाय बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा है इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रॉपर्टी टैक्स इज कलेक्टेड बाय द स्टेट बेस्ड टैक्स। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इन विच ईयर डिड इंडिया इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो कौन सा साल था जिसमें इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए थे? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1999। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1999। 1991 is the right answer. The economic reforms in India was initiated in 1991 under the leader and the Prime Minister and government of PV Narasimha Rao. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is the main cause of poverty in India? इंडिया में पॉवर्टी का मेन कारण क्या है? ऑप्शन ए इज इनसफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी का इनएफिशिएंट होना। ऑप्शन बी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी का बढ़ जाना। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। डी एक्सेस फॉरेन ट्रेड में कमी आना। ऑप्शन बी इज द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का बढ़ जाना। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स इमेंस प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज लीडिंग टू द प्योरिटी। सो प्योरिटी का सबसे मेन कारण जो है वो है
हाई पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? वो कौन सी कैटेगरी है जिस सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है? सो ऑप्शन ए इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसका सही जवाब है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Seasonal unemployment occurs when people are unemployed during a certain times of a year or specific agriculture, especially in agriculture. So, seasonal unemployment occurs, जो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक सर्टेन टाइम में होता है साल में, और ये स्पेशली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू पीपल ट्रांजिशनिंग बिटवीन जॉब्स एंड फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हम उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जब कोई अपना जॉब चेंज करता है, एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र करता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ड्यू टू द मिसमैच स्किल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे कहते हैं जब जब जॉब के साथ स्किल दैट मैच नहीं होती है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करना। ऑप्शन बी इशू करेंसीज, करेंसीज को इशू करना। सी प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर, लोन्स को फार्मर को लोन्स प्रोवाइड करवाना। डी फॉर्मुलेट फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज को बनाना। सो सही आंसर है इशू करेंसीज, करेंसी को इशू करना। द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी एंड मैनेजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। आरबीआई का काम है करेंसी को इशू करना और मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना। Other than that, tax collection and fiscal policies formulation are under the domain of the finance ministry. So fiscal policies and tax collections जो भी होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। Who as the current governor of the Reserve Bank of India? गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करंट गवर्नर कौन है? सो ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी है दुवरो सुब्बाराव। तो ऑप्शन सी है शक्तिकांत दास इज़ द राइट आंसर। शक्तिकांत दास जो हैं वो हमारे करंट गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2018 से। इससे पहले उर्जित पटेल और रघुराम राजन रह चुके हैं गवर्नर। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया? सो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंडिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा है? ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, ऑप्शन सी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, डी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। सो एनएससी इज द राइट आंसर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इंडिया में। BSE is also a stock market exchange but smaller than NSE. Which of the following the indicates represent the performance of the Bombay Stock Exchange? Option A S&P BSE Sensex, option B Nifty 50, option C BSE Mid Cap, option D BSE 500. Answer A SAP BSE Sensex.
So the SAP BSE Sensex is a benchmark index for the BSE representing 30 out of the largest and the most traded stock. Nifty 50 is associated with the NSE. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. What is the SI unit of force? Force की SI unit क्या होती है? Option A न्यूटन, option B joule, option C pascal, option D watt. So right answer is Newton is the SI unit which is measured by the force required to accelerate 1 kg of mass by the 1 meter per second, meter per square. So joule is the unit of energy. जो जूल है वो एनर्जी की यूनिट होती है. पास्कल इज फॉर प्रेशर. पास्कल का हम इस्तेमाल प्रेशर में करते हैं, वॉट का इस्तेमाल हम पावर में करते हैं. तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है? सो ऑप्शन ए वेलोसिटी, बी फोर्स, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट. Speed is a scalar quantity as it is only has a magnitude, no direction. So स्केलर क्वांटिटी है स्पीड क्योंकि उसका एक मैग्नीट्यूड हो सकता है बट वो किसी सडन या कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता. वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आर द वेक्टर क्वांटिटी. दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी, बट स्पीड को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स्ड करके यूज़ नहीं करते हैं. स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसलिए उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं. इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ऑप्शन बी इट्स स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम. उसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ते जाए. ऑप्शन सी इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा. इट्स डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन इज ऑफ मोशन चेंजेस, डायरेक्शन जो है वो मोशन चेंज कर रहा हो. इट्स कांस्टेंट. इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. यूनिफॉर्म मोशन मींस द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट इन चेंजिंग द स्पीड और डायरेक्शन. यूनिफॉर्म मोशन से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में हो और वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हो. अगर स्पीड बढ़ेगी तो हम उसे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. इन विच टाइप ऑफ मोशन डज एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन? इनमें से किस तरह के मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? ए सर्कुलर मोशन, बी लीनियर मोशन, सी रोटेशनल मोशन, डी वाइब्रेशनल मोशन. तो इसका राइट आंसर है वो है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ. जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में जब मूव करता है तो हम उसे लीनियर मोशन कहते हैं. समझ सकते हैं इस तरह के से मूव करेगा तो. और सर्कुलर रोटेशन एंड वाइब्रेशन मोशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. विच ऑफ द न्यूटन लॉज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? न्यूटन का वो कौन सा लॉ है जिसमें हम इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी थर्ड लॉ, ऑप्शन डी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ. न्यूटन first law of motion states that an object will be remain at rest or in form motion unless act upon by the external force which is inertia. कहने का मतलब ये है कि लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ जो यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट पोजीशन में है,
उसे चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स और इनर्शिया की ही ज़रूरत पड़ती है। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is the correct mathematical expression of Newton's second law of motion? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? सो ऑप्शन ए इज एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, बी इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम बी, सी इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, and D is equal to F plus ma. So right answer is F is equal to ma. Newton's second law states that force is produced by the mass and acceleration. फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो मास और एक्सेलेरेशन के बेस पे प्रोड्यूस होता है। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? ऑप्शन ए साउंड वेव, बी लाइट वेव, सी वाटर वेव, डी seismic wave. So light wave is an electromagnetic wave and transverse. Sound wave are longitudinal and water waves are combination of both the types of waves. लाइट वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, सो उन्हें ट्रांस वेव भी कहते हैं। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एन ऑसिलेशन कॉल्ड? हम एक कंप्लीट ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए इज एम्पलीट्यूड, ऑप्शन ए इज एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इज पीरियड, ऑप्शन डी इज वेवलेंथ। सो सही जवाब ऑप्शन सी, पीरियड। द पीरियड इज टाइम टेकन टू complete one full cycle of an oscillation. Amplitude is the maximum displacement. Frequency is the number of cycle per minute per second, and the wavelength is the distance between the 2 points in a wave. Oscillation वो होता है जब कभी भी a period of time taken by to complete एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है हम उसे ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लगता है हम उसे पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। What is the speed of sound in air at room temperature of 20 degrees Celsius? So option is 300 meter per second, B 340 meter per second, C 1200 meter per second, D 1500 meter per second. So sahi jawab 340 meter per second. The speed of the sound in the air room at the room temperature of 20 degrees Celsius is approximately जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, साउंड की एक जो स्पीड होती है वो रूम टेम्परेचर पे 20 किलोमीटर्स होती है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन वाटर इन सॉलिड में साउंड फास्टर तरीके से ट्रैवल करता है। 36 क्वेश्चन नंबर। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज अ साउंड वेव? साउंड वेव किस तरह की वेव होती है? ए ट्रांसवर्स वेव, बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डी टॉर्सोनल वेव। तो सही जवाब है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द particles move parallel to the direction of the sound wave propagation. Transverse wave involves the perpendicular motion. हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट की एसआई यूनिट की होती है जूल। ऑप्शन ए बी कैलोरी, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी वाट,
सो इसका राइट आंसर है जूल। द SI यूनिट ऑफ heat is joule. Calorie is also a unit of heat but not the part of SI system. So SI यूनिट ऑफ हीट जो होती है वो जूल होती है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ मैटर, नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, में से कौन सा जो है वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर often seen in high energy environment like sun. Solid, liquid, gas are the common matter of state of matter। स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस वो एक तरह का कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑफन सीन इन हाई एनर्जी इन्वायरमेंट्स लाइक सन। प्लाज्मा को हम हाई एनर्जी इन्वायरमेंट्स में ही देख सकते हैं, जैसे कि सही एग्जांपल है एक सन। हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, सी है 3 × 10⁹, डी है 3 × 10⁵। So 3 × 10⁸ is the right answer. Light speed of the approximately is 3 × 10⁸ meter per second in vacuum. So हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the force experienced by the current carrying conductor in a magnetic field called। वो किस तरह का फोर्स होता है जब कोई करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी Coulomb force. So option B is a magnetic force. The force is on a current carrying conductor is a magnetic field called a magnetic force. Electromagnetic force is related to the voltage, and Coulomb force is related to the chargers. तो चार्जर्स में जो हम जिस तरह का फोर्स को मेजर करते हैं उसे कॉलम कहते हैं, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम वोल्टेज में यूज़ करते हैं। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वॉट। सो एम्पियर इज द राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। Volt is the SI unit of a potential difference. Ohm is used to unit of resistance, and watt is the unit of power. So watt is used for the SI unit of the power, and ohm is used for the unit of resistance, and volt is used of the potential differences. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is the primary fuel used in nuclear reactors? हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किस तरह का प्राइमरी फ्यूल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम, बी कोल, सी नेचुरल गैस, डी हाइड्रोजन। सो राइट आंसर इज यूरेनियम। Uranium typically 235 is used as the primary fuel of the most of the nuclear reactors. Its ability to undergo the fusion। सो हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर में 235 यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फ्यूज़न हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। कुछ और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड हाइड्रोजन यूज फॉर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट नॉट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बट ये इन सभी का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन्स में नहीं करते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द प्रोसेस यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू रिलीज एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह का प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी फ्यूजन,
option C radiation, option D ionization. So fusion is the process which is used to nucleus of an atom split into a smaller parts and releasing a large amount of energy. So फ्यूज़न एक तरह की प्रोसेस होती है जिसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियस एटम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फ्यूज़न इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस यूज्ड इन स्टार्स. रेडिएशन एंड आयोनाइजेशन are not the primary process of energy generation. So रेडिएशन और आयोनाइजेशन में किसी भी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, बट फ्यूज़न और फ्यूज़न में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी मीटर. तो सही आंसर है जूल. द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. जे defined as the work done when the force of the 1 newton is applied over a distance of 1 meter. Is newton is the unit of force, watt is the unit of power, and the meter is the unit of resistance. Sorry, meter is the distance. मीटर का हम इस्तेमाल डिस्टेंस में करते हैं, वॉट का इस्तेमाल हम पावर में करते हैं, और न्यूटन का इस्तेमाल हम फोर्स में करते हैं. मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस. हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर? तो ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए इज न्यूटन, ऑप्शन बी इज जूल, ऑप्शन सी इज वॉट, ऑप्शन डी इज ampere. So power is option C is the right answer. Is what? Power is defined as the rate at which the power is done, and as a unit of the watt is equal to the 1 joule per second. Newton is force, joule is work, and ampere is electric current. What is the energy processed by a body due to its motion called? बॉडी मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उस एनर्जी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी थर्मल एनर्जी, डी न्यूक्लियर एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी processed by a body due to its motion. Potential energy is the energy due to position. Thermal energy is associated with the temperature, and nuclear energy is come with the nuclear reactions. हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? Force of a gravity is proportional to the square of the distance between the two objects. Force of the gravity is inversely proportional to the square of the distance between two objects. Force of gravity is potential to the mass of the object involved. Force of the gravity depends on the density of the object. B. Force of gravity is inversely proportional to the square of the distance between two objects. According to Newton's law of universal gravitation, the gravity force between the two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. What is the value of gravitational acceleration on Earth? So option A is 9.8 meter per
per second square, D 10 meter per second square, C 9.81 meter per second square, D 8.9 meter per second square. The acceleration due to gravity on Earth is 9.81 meters per square. What force keep a satellite in orbit around a planet? वो किस तरह का फोर्स है जिसकी वजह से जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में बनी रहती हैं? ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. So option B is gravitational force. Gravitational force is responsible for keeping satellite in orbit by pulling them towards the planet. Centrifugal force is the apparent force in rotating the reference frame, and the magnetic and electromagnetic force does not play a role in satellite orbit. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में खिंची हुई रहती हैं, मीन्स एक तरह का स्टेबल कनेक्शन बनाई रहती है. चलते अपने अगले क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट सॉइल? सॉइल का मेजर कंपोनेंट्स क्या है? ए वाटर, बी एयर, सी ऑर्गेनिक मैटर, डी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑयल कंसिस्ट ऑफ वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स पार्टिकल्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. सो जो एक सॉइल होता है वो मिक्सचर होता है वाटर का, एयर का, एयर का, एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड सम काइंड ऑफ मिनरल पार्टिकल्स भी होते हैं सॉइल में. सो हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं. सो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं. जो टॉपिक्स थे आज के वो फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. सो आज की क्लास कैसी लगी आपका अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. कोई डाउट्स हो टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. और जिस किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो हाँ, ये चाहे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है आपको टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो आपको 20 अप्रैल से पहले मिलती रहेगी, बिकॉज जो CBSE जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 20 अप्रैल को है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.